Hello all, I'm Smita Desai. Today I'm going to teach you radio frequency band, RF band. What I'm going to teach you, radio frequency band. This is one of the band of electromagnetic spectrum or IEEE spectrum. Radio frequency band. We need to know the names, titles of the all the radio frequencies. We need to know its frequency range, its wavelength and its application. What we are going to study, the names or titles of the radio frequencies, different radio frequencies, its frequency range, its wavelength and its application. Now in order to remember, these are 10 frequencies. In order to remember all these frequencies correctly with its wavelength, with its frequency and its application, I have narrated one story for you. Hope you all guys will like this. Story will start with, इट इज़ इन हिंदी। एक लो क्लास फैमिली का लड़का था। एक लो क्लास फैमिली का लड़का था, 3 का नहीं 30 साल का। 3 का नहीं 30 साल का, सीधा साधा भोला भाला, उड़ना चाहता था वो बहुत ऊपर। सीधा साधा भोला भाला, उड़ना चाहता था वो बहुत ऊपर। वेरी वेरी हाई ही वांट टू फ्लाई। लेफ्टिनेंट फ्लाइट ऑफिसर बनना था उसको। लेफ्टिनेंट फ्लाइट ऑफिसर बनना था उसको, बन भी गया। महाराष्ट्र में उसकी पोस्टिंग हो गई। एक लो क्लास फैमिली का लड़का था, 3 का नहीं 30 साल का, सीधा साधा भोला भाला, उड़ना चाहता था वो बहुत ऊपर। वेरी वेरी हाई ही वांट टू फ्लाई। लेफ्टिनेंट फ्लाइट ऑफिसर बनना था, बन भी गया। महाराष्ट्र में पोस्टिंग हो गई। हाई फाई सपने देखने लगा वो। अब लेफ्टिनेंट फ्लाइट ऑफिसर बनना था, बन गया। महाराष्ट्र में पोस्टिंग होगी तो हाई फाई सपने तो देखेगा ही। हाई फाई सपने देखने लगा वो। वेरी सुन ही वॉन्ट टू सेटल डाउन नाउ। उसको थी अब एक लाइफ पार्टनर की तलाश। फिर शीला आ गई उसकी लाइफ में, और अब एक हैप्पी फैमिली से आप मिल सकते हो। एक हैप्पी फैमिली से आप मिल सकते हो। एक लो फ्रिक्वेंसी का लड़का था, सीधा साधा भोला भाला, उड़ना चाहता था बहुत ऊपर। वेरी वेरी हाई ही वांट टू फ्लाई। लेफ्टिनेंट फ्लाइट ऑफिसर बनना था, बन गया। महाराष्ट्र में पोस्टिंग हो गई। हाई फाई सपने देखने लगा वो। वेरी सुन ही वांट टू सेटल डाउन। उसको थी एक लाइफ पार्टनर की तलाश। फिर शीला आ गई उसकी लाइफ में, और एक हैप्पी फैमिली को अब आप मिल सकते हो। अब हमें क्या करना है गाइस, एलएफ के ऊपर सारे एलएफ है लिखना है। एलएफ के ऊपर हमें सारे एलएफ लिखना है, और एचएफ के नीचे सारे एचएफ। बिलो एचएफ वी नीड टू राइट ऑल एचएफ्स, और बीच में जो एम है उसके सामने सिर्फ एफ लिखना है। ओके, तो these are the titles of the frequencies. What is this ELF? मतलब extremely low frequency. SLF is super low frequency. ULF is ultra low frequency. Very low frequency, low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, extremely high frequency. So these many frequencies are there in radio frequency band. Okay, now we need to write the frequencies in front of each title. We need to write its frequency range. So first mark the arrows here. So I'm marking here arrows. 3 का नहीं 30 साल का हमने लिखा था, तो 3 से 30 हर्ट्स ऐसे लिखना है सामने। 3 का नहीं 30 साल का, और बस हमें एक एक जीरो जोड़ते जाना है। 30 to 300 एंड 300 to 3000 हर्ट्स, मतलब 3000 हर्ट्स इज 3 किलो हर्ट्स। ओके, सो 3 to 30, 30 to 300, 300 to 3। ये जो अब हमने लिखा, इसी को हमें 3 बार 3.5 टाइम्स हमें रिपीट करना है। 3 to 30, 30 to 300, 300 to 3, 3 to 30, 30 to 300, 300 to 3, again 3 to 30 and 30 to 300. Now see, ये किलो हर्ट्स तक हमने लिखा था, मतलब दिस इज 3 किलो हर्ट्स टू 30 किलो हर्ट्स, 30 किलो हर्ट्स टू 300 किलो हर्ट्स, 300 किलो हर्ट्स टू 3000 किलो हर्ट्स मीन्स 3 megahertz. Now this is 3 megahertz to 30 megahertz, 30 megahertz to 300 megahertz, 300 megahertz to 3
gigahertz. 3000 megahertz is 3 gigahertz. 3 gigahertz to 30 gigahertz and 30 gigahertz to 300 gigahertz. Means what? Extremely high frequency lies in the range of 30 to 300 gigahertz. Medium frequency band lies in the range of 300 to 3 megahertz. Got it? So these are the frequency ranges. Now we need to remember the bandwidth. So we need to remember this first. 10 raised to 7 to 10 raised to 6, 10 raised to 7 to 10 raised to 6 meters. Okay, so 10 raised to 7 to 10 raised to 6 is the wavelength, meter wavelength is for extremely low frequency. We need to duplicate it once again. First बस एक ही चीज़ को दोबारा लिखना है और इसके बाद हमें क्या करना है, बस एक एक से उसको रिड्यूस करते जाना है. 10 raised to 6 to 10 raised to 5, 10 raised to 5 to 10 raised to 4, 10 raised to 4 to 10 raised to 3, 10 raised to 3 to 10 raised to 2, 10 raised to 2 to 10 raised to 1, 10 raised to 1 to 10 raised to 0, 10 raised to 0 to 10 raised to minus 1, 10 raised to minus 1 to 10 raised to minus 2 in meters. 10 raised to minus 2 to 10 raised to minus 3. ये हो गई wavelength in terms of meter. Okay, so these are the titles of frequencies, these are the ranges of frequencies, wavelengths, and now application. First 4 applications are low frequency applications. As we go on, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो पहले जो 4 फ्रीक्वेंसीज है वो 4 फ्रीक्वेंसीज लो एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं. सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है, जो 3 to 30 हर्ट्ज है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस. और उसके बाद के 3 जो है वो नेवी सबमराइन एप्लीकेशंस में काम आते हैं. तो सबमराइन एप्लीकेशंस एंड नेवी एप्लीकेशंस, सबमराइन एंड नेवी एप्लीकेशन, तीनों में हमें सबमराइन नेवी एप्लीकेशंस लिखना है, क्योंकि पहले 4 जो फ्रीक्वेंसीज है वो सबमराइन नेवी एप्लीकेशंस लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए काम आते हैं. उसके बाद के जो 3 है वो एएम रिलेटेड एप्लीकेशंस है. उसके बाद के जो 2 है वो एंटरटेनमेंट के रिलेटेड, टीवी मोबाइल जो है उसका इन्वेंशन हो गया और उसकी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज ये है. और उसके बाद के जो 2 है वो सैटेलाइट एंड रडार, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, माइक्रो एप्लीकेशंस के लिए आते हैं. तो हमें याद रखना है कि पहले 4 लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, सबमराइन नेवी एप्लीकेशंस, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन. उसके बाद एएम एप्लीकेशंस मैंने बोला, तो एएम के 3 एप्लीकेशंस. एएम इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम शॉर्टवेव और स्मॉल वेव कम्युनिकेशन, एएम शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन के लिए, एएम मीडियम वेव कम्युनिकेशन के लिए, एएम मीडियम वेव कम्युनिकेशन के लिए एंड एएम लॉन्ग वेव कम्युनिकेशन के लिए. एएम शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, एएम मीडियम वेव कम्युनिकेशन, एएम लॉन्ग वेव कम्युनिकेशन. उसके बाद आता है रेडियो इन्वेंशन, रेडियो एंड टीवी. उसके बाद आता है मोबाइल. मोबाइल की रेंज क्या है? 300 to 3 गीगाहर्ट्ज. इसके बाद आता है सैटेलाइट एंड रडार, सैटेलाइट एंड रडार, ये भी सैटेलाइट एंड रडार. तो इसको याद कैसे रखना है? फर्स्ट 4 ऑडियो फ्रीक्वेंसी सबमराइन नेवी एप्लीकेशंस, उसके बाद 3 एएम रिलेटेड, एएम शॉर्ट वेव, एएम मीडियम वेव, एएम लॉन्ग वेव. आफ्टर दैट रेडियो एंड टीवी, देन मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट एंड रडार और शॉर्ट वेव microwave applications and long wave microwave applications. So this is the entire radio frequency band. If you remember the story, you will not miss any frequency. Sometimes in books super low frequency and ultra low frequency both are combined and voice frequency tag is given. So this is very minor, छोटे छोटे फ्रीक्वेंसीज को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और स्टोरी भी बन रही है इससे अच्छी खासी, तो याद रहने के लिए अच्छा है. थैंक यू.